स्टूडेंट्स, आज हम सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीसी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स 1 जो कि दिसंबर 2024 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा गया है जो कि 3 मार्क्स में पूछा गया है। सो नाउ हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि यूनिट 1 मैट्रिक्स से पूछा गया है। So question number 1, if A is equal to, this matrix is given 3, 5, 4, 2 and question is asking find A square minus 2A। इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है A square minus 2A। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास गिवन है मैट्रिक्स A। सो गिवन दैट मैट्रिक्स A is equal to 3, 5, 4, 2। इस क्वेश्चन में आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स पूछी गई है जिसमें नंबर ऑफ रोज है 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 2। दैट मीन्स इट्स ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2। नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड करना है A स्क्वायर माइनस 2A। दैट मीन्स फर्स्टली हम फाइंड आउट करेंगे A स्क्वायर। So in the next step, we have to finding A square. A square, that means A is multiplied to A. So A is multiplied to itself. So matrix A is given 3, 5, 4, 2 and we have to multiply similar matrix to A. 3, 5, 4, 2. Now we have to multiply two matrix. First row is multiplied to first column and first row is multiplied to second column, element to element. So हम multiplication start करते हैं। First row is multiplied to second matrix first column. So 3 is multiplied to 3, that means is a 9, plus 5 is multiplied to 4, that means 20. Now first row is multiplied to second column. So 3 is multiplied to 5 is a 15 plus 5 is multiplied to 2, that means 10. Again we have to multiply second row to first column, second row to second column. So 4 is multiplied to 3, that means 12 plus 2 is multiplied to 4, that means 8. Now again second row is multiplied to second column. So 4 is multiplied to 5, that means 20 plus 2 is multiplied to 2, that means 4. So now calculation is, here we have to writing calculation 29, 25, 12 plus 8 is 20, 20 plus 4 is 24. So this is a value of A square. Now we have to finding is a 2A. This 2 is a constant value, scalar value. This scalar value I multiplied to given matrix. So 2 is multiplied to given matrix 3, 5, 4, 2. So calculation is 2 is multiplied to all elements in the given matrix. 2 is multiplied to 3, that means a 6. 2 is multiplied to 5, that means a 10. 2 is multiplied to 4, that means a 8. 2 is multiplied to 2, that means 4. Now हम वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है इक्वेशन A स्क्वायर माइनस 2A। तो हम नाउ कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ कैलकुलेशन ऑफ A स्क्वायर माइनस 2A। Here I substituting value of A square and value of 2A. So हम ऊपर से A square की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। So value of A square यहाँ पे हम निकाल के रखें 29, 25, 20, 24. नेक्स्ट माइनस वैल्यू ऑफ 2A, ये आपने पहले ही निकाल के रखा है। वैल्यू ऑफ 2A इज 6, 10, 8, 4. नाउ दोनों मैट्रिक्स को आपको सबट्रैक्ट करना है। नाउ सो कैलकुलेशन इज 29 minus 6
25 minus 10, 20 minus 8, 24 minus 4. So its answer is 29 minus 6 is 23, 25 minus 10 is 15, 20 minus 8 is 12, 24 minus 4 is 20. So this is the answer of your first question. ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया था, जिसका बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, जो कि इस तरीके से होगा। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है इवेल्यूट लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, जो कि यूनिट 2 लिमिट से पूछा गया है। सो हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। सो यहाँ पे आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो गिवन दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x upon x, we know that tan x is equal to sin x upon cos x. So first हम tan x को कन्वर्ट करेंगे sin x upon cos x में। लिमिट x टेंडिंग टू 0, we have to arrange this function tan x upon x. So हम इसे सेपरेट करके लिख सकते हैं 1 upon x into tan x. Now this tan x को फिर से हम कन्वर्ट कर सकते हैं sin x upon cos x में। So limit x टेंडिंग टू 0 1 upon x, tan x को हम चेंज कर रहे हैं sin x upon cos x में। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x upon x ये इक्वल होता है 1 के। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लिमिट यूनिट में। सो वी हैव टू अरेंज दिस फंक्शन। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x upon x. Now this term 1 upon cos x I separate in second term. So limit x tending to 0 1 upon cos x. We know that limit x tending to 0 sin x upon x is a formula and this equal to 1. So we know that हमें पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू इक्वल होती है 1 के। सो इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो 1 मल्टीप्लाइड लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन cos x। ओके, सो यहाँ पे इसका हमने वैल्यू पुटअप किया बाय फॉर्मूला 1। नेक्स्ट जो फंक्शन बच रहा है वो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन cos x। तो क्योंकि ये x का फंक्शन है और यहाँ पे x की लिमिट 0 है, तो हम इस x की लिमिट को यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो x की लिमिट जब आप पुटअप करोगे तो आपको फाइंड आउट होगा 1 अपॉन cos 0 एंड cos 0 की वैल्यू सभी को पता है, cos 0 इज इक्वल टू 1। सो कैलकुलेशन इज 1 मल्टीप्लाइड टू 1 अपॉन 1। सो दिस वन इज इक्वल टू 1। सो ये सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जो एक फॉर्मूला है बट यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के लिए पूछा गया था। 3 नंबर में ये पूछा गया था, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा इज इक्वल टू 1। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है वो है डिफरेंशिएट x इंटू लॉग एक्स, जो कि डिफरेंशिएशन के यूनिट 3 से पूछा गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है फंक्शन वो है x इंटू लॉग एक्स। पहला फंक्शन जो x है वो एक अलजेब्रिक फंक्शन है और सेकंड फंक्शन log x जो कि लॉगरिथमिक फंक्शन है और जो खुद में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज रखते हैं। सो ये दोनों फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सो वी हैव, यहाँ पे हम जानते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ टू फंक्शंस ऑफ डिफरेंशिएशन इज डिफाइंड बाय d by dx
u मल्टीप्लाइड टू v। दो फंक्शंस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो डिफरेंशिएशन के लिए हम पहले फंक्शन को एज इट इज रखते हैं एंड डिफरेंशिएटिंग सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन इज एज इट इज डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट फंक्शन। सो यहाँ पे आपके पास टू फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, दैट मीन्स x हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे एंड log x जो होगा आपका सेकेंड फंक्शन होगा। सो नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाइड differentiation x into log x. So x is a first function and log x is a second function. So यहाँ पे पहले फंक्शन को हम as it is रखेंगे एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड फंक्शन log x, प्लस सेकेंड फंक्शन को हम as it is रखेंगे एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन। सो नाउ यहाँ पे पहला फंक्शन एज इट इज है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल एंड सेकेंड फंक्शन इज डिफरेंशिएटिंग, प्लस सेकेंड फंक्शन इज एज इट इज डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट फंक्शन। अब हम डिफरेंशिएशन के यहाँ पे फॉर्मूलेज अप्लाई करते हैं। सो वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1। जो x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो 1 के इक्वल होता है एंड log x डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1 upon x. So now substituting this differentiation formulas, so here x multiplies differentiation of log x is 1 upon x plus log x differentiation of x is 1. So now calculation is x-axis cancel. So first term is 1 and log x multiplication 1 is plus log x. So answer is differentiation of log x is 1 plus log x. बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन में, जो कि जिसका आंसर है 1 plus log x। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रेशन e to the power 2x minus 1 dx। ये यूनिट 4 के इंटीग्रेशन चैप्टर से आया हुआ है। सो हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। नाउ क्योंकि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x माइनस 1 dx। क्योंकि e टू द पावर 2x माइनस 1 इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता है, सो यहाँ पे इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। आपको e की पावर, क्योंकि हमें फॉर्मूला किसका पता होता है, e टू द पावर x का, e टू द पावर x इंटीग्रेशन इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो ये जो पावर है 2x माइनस 1 इसे हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो इसके लिए हम इसे सपोज कर लेते हैं लेट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू t। नाउ क्योंकि हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं तो इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 dx एंड 1 डिफ्रेंशिएशन इज 0 इज अ कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू dt। हम यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरे फंक्शन को t में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, dx इज इक्वल टू dt बाय 2। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन गिवन फंक्शन, सो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x माइनस 1 को हमने t सपोज किया है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं e टू द पावर t एंड dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट है dt बाय 2। सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे dt बाय 2। क्योंकि 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो हम इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। सो 1 बाय 2 इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt। क्योंकि ये फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल t में कन्वर्ट हो चुका है, तो वी नो दैट हमें फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x होता है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सो 1 बाय 2 इंटीग्रेशन e टू द पावर t विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये सेम है दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर t। नाउ क्योंकि क्वेश्चन x में पूछा गया और t हमने सपोज किया था, तो लास्ट में आप क्या करेंगे, t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे।
सो यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट होगी वो होगी 1/2 e to the power 2x minus 1. सो दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन क्वेश्चन. बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो कि 3 नंबर में पूछा गया था इंटीग्रेशन से. सो यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन होगा वो होगा 1/2 e to the power 2x minus 1. सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 5 जो कि वेक्टर यूनिट से पूछा गया है. क्वेश्चन है इफ a vector is equal to 2i cap plus 3j cap plus 6k cap and b vector is equal to 3i cap minus 6j cap plus 2k cap. Show that a vector and b vector are perpendicular vectors. आपको यहाँ पे शो करना है कि जो a vector है और b vector वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. मतलब परपेंडिकुलर है दैट मीन्स 90 डिग्री पे होने चाहिए. तो वी नो दैट वी हैव two vectors a vector and b vector are perpendicular vectors, then if two vectors a vector and b vector are perpendicular vectors, then a vector dot b vector is equal to 0. तो हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि यदि दो वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वह इक्वल टू 0 होना चाहिए. हमारे पास 2 वेक्टर्स गिवन है इन द क्वेश्चन. सो हमें प्रूफ करना है कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू 0 यदि होता है दैट मीन्स दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे. सो नाउ हम सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं. सो हियर गिवन वेक्टर्स आर a vector is equal to 2i cap plus 3j cap plus 6k cap and b vector is equal to 3i cap minus 6j cap plus 2k cap. सो नाउ हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे a वेक्टर एंड b वेक्टर डॉट b वेक्टर. यदि ये इक्वल टू 0 आ जाता है दैट मीन्स क्या होगा, दिस इज अ परपेंडिकुलर. सो नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाइड a वेक्टर डॉट b वेक्टर. सो a वेक्टर इज 2i cap plus 3j cap plus 6k cap is dot product of b वेक्टर 3i cap minus 6j cap plus 2k कैप. अब हमने वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में ये पढ़ा है कि i डॉट आई, यदि हम i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, j को j के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, k को k के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो इसकी वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट होती है. बट यदि हम i को j के साथ करें, i को k के साथ करें, j को i के साथ करें, j को k के साथ करें एंड k को i के साथ करें एंड k को j के साथ करें तो ये इक्वल टू 0 होता है. तो यहाँ पे हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे कि i डॉट आई इज अ सिमिलर मल्टीप्लिकेशन j डॉट j k डॉट k is equal to 1 and i डॉट j डॉट k डॉट i other multiplications is equal to 0. So calculation is first element 2 is multiplied to 3 is a second vectors of first element. So 2 is multiplied to 3 that means a 6. 3 is multiplied to minus 6 that means minus 18 and 6 is multiplied to 2 is plus 12. So calculation is 18 minus 18 is 0. सो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन मिल रहा है a वेक्टर b डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0. मतलब इसका मीनिंग है ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है. ठीक है, तो आपकी जो दोनों वेक्टर्स हैं a वेक्टर और b वेक्टर वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे. सो नाउ यहाँ पे हमें जो कैलकुलेशन मिल रही है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है. हैंस a वेक्टर एंड b वेक्टर
आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन यूनिट 5 से पूछा गया था, वेक्टर यूनिट से, जिसमें आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करनी थी। इसे आप नोट कर लीजिए।